क्लियर सुनने के लिए और सिखाने के लिए उनको भी प्रभु ने बहुत अच्छा मौका दिया. I thank God for sending His servant and through His experience He spoke with us and He shared from the Word of God. What was the content? What was the how can we summarize the whole message? And we are in a warfare. हम एक युद्ध भूमि में हैं. जिसको डर है युद्ध में नहीं जा सकता है. If there is anyone who don't have that dareness to enter into the warfare, it is better step back. We have the weapons and we know and we have here and we have so many people went with this weapon and changed the life of many people. And that is the word of God. And we are studying and we are hearing and we are singing and we are praying. All these things we have. That's why I said if you have fear, it is better. Don't step in, step back. For the first thing that we have to do, again we came to the same point, that is we should not keep the fear in our heart. Because वो जो तलवार हमारा हाथों में है, तलवार हमारा हाथों में है तो युद्ध में लड़ने के लिए कोई डर का जरूरत नहीं होगा. हालेलुया. आइए हम हमारे बीच में और 1 hour बाकी है. We have 1 more hour in our midst. And some of you might be thinking in our college, the few new friends, those who came from different college, they might be thinking, in our college, almost at least 2 hours or 1.5 hours only we used to have worship, isn't it? लगभग 1.5 घंटा ही worship होगा बाकी colleges में. Do not compare that college and this college. We spend almost 5 hours in some Sundays time. Because it is good. पूरा हफ्ता के लिए हमको पेट्रोल का जरूरत है. वो पेट्रोल पूरा भरकर टैंक भर के इधर से जाना. We need the fuel to live for 1 more week. That's why we used to have. That's why in the beginning itself I said we used to have like for worship time we used to stand for more than 2 hours. We used to stand and worship. Otherwise, if some people will sit and slowly they will sleep also. हमारा हाथों में उतना पावर नहीं है जैसा पौलुस ने प्रचार कर रहा था. किसी ने गिर गया उसको जल्दी जी उठने के लिए पौलुस का हाथ में उतना पावर था. इसलिए खड़े होकर हम आराधना करते हैं. और वचन 2 सेक्शन या 3 सेक्शन होगा. जो सेक्शन मैं लेता हूँ, दिस इज we separated it to our Bible study hour. So अभी जो समय है हमारा सामने, हम वचन से सीखने के लिए जा रहा है. सीखने से पहले जो हमारा नियम है लिखने के लिए पेन और नोट. Then it is not only Jinsan or it is not only preacher who is going to preach. आप लोग भी मेरे साथ मुझको उत्तर भी देना पड़ेगा. और कुछ लोग हिंदी बाइबल कुछ लोगों के हाथों में है. हिंदी बाइबल खोलकर उसमें से वचन पढ़ के मदद करना पड़ेगा. Some of you have Hindi Bible and some of you have English Bible. And we all follow ESV Bible. That's why we should not get any doubt when we are reading verses because everything will be same and same to same. And आज रमेश मुझे हिंदी में पढ़ने के लिए मदद करना. And some of you be ready to take the verses, take the वचन लेकर मुझे मदद करने के लिए तैयार होना. रेडी है? और एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैंने सबको अभिवादन करता हूँ. I want to greet all of you in the sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ. And some of you know, and we have the dual community. 2 trios we have. Some of you understand Hindi, English. Some of you Hindi, some of you English. At the same time, I am going to when I take these classes, I believe that these words we submit into God's hand, and we will sit with a heart that God teach me from this historical evidences or these verses which I have taken. हम ऐसा प्रार्थना में बैठेंगे, परमेश्वर ये जो ऐतिहासिक बातें मैंने सीखने के लिए जा रहा हूँ, खोजने के लिए जा रहा हूँ, इसमें से मेरे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए आप मुझे सिखाना. आज हम पढ़ेंगे. सबसे पहले जो लोग गीत में अगुवाई किया उनको धन्यवाद करता हूँ, रमेश और बाकी लोग. और जो व्यक्ति बेनार्डो भजन संगीत पढ़ते हुए अगुवाई किया, आपको भी धन्यवाद करता है. Just want to thank those who led in worship and those who led in reading psalms. At the same time, I want to thank Pastor Chijo for sharing from the word of God that we are in a warfare. And as we enter into this warfare, there are many people, they look to us that they have many comments on us. जैसे हम इस मल्ल युद्ध या युद्ध का
इस मैदान में जाने का समय बहुत लोग हैं हमको देखकर हमारा जीवन के बारे में कमेंट डालने के लिए और हमारा जीवन के बारे में सोचने के लिए। मैंने सोचने के लिए जैसे इसलिए बोला, when I said that there are many people to think about our life. There are many, most of them will think he can't do, he will fail, or he is not enough to go for this war. There are many people like that in our life. हमारे जीवन में बहुत ऐसे लोग ऐसा है, हमको देखकर बोलते हैं युद्ध तो लड़ने के लिए निकला, किसी को देखकर निकला तो होगा। फिर ये लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, तुझसे नहीं हो पाएगा और तू जाके फायदा नहीं। आज हम जो भजन संगीत पढ़ा, भजन संगीत अध्याय 3, भजन संगीत चैप्टर 3, उसका दूसरा वचन किसी ने पढ़ के देखिए, वहां बहुत अच्छा से एक वचन लिखा है। वो जब मैंने सुना, वो मेरे जीवन की करीब करीब वो वचन मुझे कुछ बातें सिखाया। पढ़िए हिंदी में, भजन संगीत 3 का दूसरी वचन। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। बहुत से मेरे प्राण के बारे में सोचकर क्या कहता है, इसकी बचाव इस परमेश्वर से नहीं होगा। When we take this verse and apply it to our life, there are many people in our life, there are many people who told to us, तुझसे नहीं होगा, ये विश्वास और यीशु मसीह करके जाते हैं, कोई फायदा भी नहीं। There are many people, बहुत से लोग हमसे इसे बताया, अरे तुझसे नहीं होगा, मतलब from many people we have already heard the words of discouragement, isn't it? बहुत से लोग हमको निरुत्साह किए हुए लोग हमारे जीवन में, बहुत से लोग हमारे परिवार से, हमारे गांव से, हमारे रिश्तेदार से, सब छोड़ दो, आप इधर बैठने वाला दोस्त लोग भी कभी कभी ऐसा बातें करेगा। When we think about the friends you have here, at times they are also like that only. They will also say, अरे तुझसे नहीं होगा। When we started the English classes, there are many people. It was around 18 to 19 students were there. When it was the time for first semester break, many people went back and they did not come. The problem is English से डर है, and many came here to learn English. And when we started the classes, they said हिंदी ही अच्छा है। मैं हमारा कॉन्टेक्स्ट से कुछ बातें कर रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए। सो वचन में क्या लिखा, बहुत से लोग हैं हमारे जीवन के बारे में सोचकर कमेंट। आज के जमाने में जब हम जवान लोग जीता है, लाइक शेयर कमेंट का युग है। अभी लाइक शेयर कमेंट नहीं है तो हमको खुशी भी नहीं होता है। कभी कभी देयर वाज अ टाइम ग्रुप फोटो डालते हुए हम खुशी मनाते थे। अभी सिंगल मैं है तो ही और मैं ही सुंदर दिखाई देना है। सच बताए तो परमेश्वर को इससे सारी चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। इफ यू हैव ए हार्ट टू सर्व द लॉर्ड, ही विल लिफ्ट यू अप। एंड इफ यू आर लिफ्टिंग योरसेल्फ अप से, मेक श्योर यू विल फॉल डाउन। यही बाइबल में बहुत सारा कहानी हमको बताता है। हम खुद को ऊंचा करते हुए, ऐसा कुछ काम करते हुए, सेवकाई में इस युद्ध में चलने के लिए है, तो मैं युद्ध में गया, लड़ा करके। दाऊद के जीवन देख के देखा तो हमको समझ आएगा। ये भजन संगीत दाऊद का भी है। दाऊद को राजा बनने से पहले बहुत बड़ा सिंहासन डालकर उसमें उसका ऊपर नहीं बिठाया परमेश्वर ने। बुलाहट मिला, चरवाहा था युद्ध में, मतलब तुझको राजा बनने के लिए बुलाहट है, सामने किसको खड़ा किया। मतलब हमारे जीवन में कुछ पाना है तो सबसे बड़ा समस्या को परमेश्वर हमारे सामने लेकर खड़ा करेगा। उसकी सामना करने का वेपन भी हमारा हाथों में है। कभी कभी हम इंसान होने के नाते इस वेपन का मूल्य क्या है, we will forget the power of this weapon. So we have read a verse that is Psalms chapter 3 verse 2. और आज की मनन के लिए वो एक कुंजी वचन की समान, की वर्ष की समान मैंने लिया है, क्योंकि जब उन्होंने पढ़ा, जो वचन मैंने ध्यान करके आया और जो वचन मेरा मन का अंदर था, दोनों में एक बड़ा लिंक है। और आज के मनन के लिए और आज के स्टडी के लिए हम लेंगे मरकुस से रचित सुसमाचार chapter 2 verse 1 to 12. So for today's meditation we will turn our Bibles to Mark chapter 2 verse 1 to 12. We are not going to read all verses together. In between I will ask some people or those whom I have assigned, be ready to catch the verses. तुरंत पढ़ के मुझे मदद करना या हमें मदद करना। Mark, the Gospel according to Mark chapter 2 verse 1 to 12. इसका पहली वचन पढ़िए हिंदी में। चैप्टर 2 का 1। कई दिनों के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि बस चैप्टर 2 verse 1 and now read chapter
Mark chapter 2 verse 8. And immediately Jesus, perceiving in his spirit that they thus question within themselves, said to them, why do you question these things in your heart? Amen. So for today's meditation, we will entitle our meditation or our Bible study, our do one title, why do you question these things in your hearts? हिंदी में बताया तो हिंदी में पढ़िए 8वां वचन। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों इस विचार क्यों कर रहे हो? So for today's meditation, our title is why do you question these things in your hearts? Let's close our eyes and look to the Lord in prayer. आइए हम आंख बंद करेंगे, इस वचन को हम प्रभु के हाथों में देंगे। प्रार्थना करना प्रभु इस वचन से मेरी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, प्रभु मेरे आने वाले हफ्ता इस सोच मेरे जीवन में बने रहने के लिए प्रभु मुझे मदद करना। लॉर्ड, वी सबमिट this time and those who are hearing and including myself into thy hands. We submit the word of God, the verse into their hands. Lord, prepare us to learn from this Bible portion which we have taken, which you have given. ये जो बातें प्रभु सीख कर सुनकर हमारा जीवन में, मेरे जीवन में उसको अप्लाई करने के लिए, लागू करने के लिए प्रभु आप मुझे मदद करना। In Jesus mighty name we do this prayer. Amen. Hallelujah. हालेलुया। अभी हमने पहले एक वचन पढ़ा है Psalms chapter 3 verse 2। वहां हमने एक बातें देखा, तो बहुत सारे से लोग हैं मेरे जीवन के बारे में और मेरे जीवन को देखकर बहुत से बातें सोचने के लिए। वो लोग मेरे जीवन के बारे में एक ही सोचता है, या मेरी और इस वचन का मूल्य को जिसको पता नहीं इस दुनिया का जो लोग, वो लोग मेरे जीवन के बारे में यही सोचता है। क्या सोचता है? इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, पढ़ाई नहीं है, परिवार गरीब है, बहुत से बातें हमारे पीछे है हमको निरुत्साह करने के लिए, है क्या नहीं? अगर मैं मेरे जीवन के बारे में सोचा था, ऐसा बहुत से बातें मेरे जीवन में भी था, फिर भी परमेश्वर ने हमको चुना है तो, and if you are accepting the call that you received from God, that is all enough to serve Him in this warfare, इस युद्ध भूमि में उनको सेवा करने के लिए उनकी बुलाहट को अच्छे से समझकर निकलना एक ही बात है, काफी है क्या नहीं? आप कितना तक पढ़ा? हमने जब IATA का जब अक्रेडिटेशन कॉलेज के बारे में सोच रहा था, बहुत से लोग बोला ATA का जाके लेना करके, एशियन थियोलॉजिकल एसोसिएशन। वहां का एक नियम है, जो लोग पढ़ा लिखा है उनको ही पढ़ा सकते हैं कॉलेज में। क्योंकि जब मैं मेरे बारे में सोच के देखा, हमको भी बहुत से निरुत्साह बातें हुआ था। मैंने बहुत लोगों को देखा जिसको पढ़ना लिखना नहीं आया कर परमेश्वर के वचन को सिखाने के बातें छोड़कर भी भेज देता है, बिकॉज एवरी कॉलेज हैव देयर एकेडमिक लेवल। इसलिए हम जब IATA का जब अक्रेडिटेशन लिया तो मेरा सोच एक ही था, जिसको ABCD IE वर्णमाला भी नहीं आता है, हम उसको भी लेके सिखाकर लगभग उनका जीवन में खड़े होकर 4 शब्द उनका भाषा में प्रभु के बारे में बताने के लिए हुआ। तो हमारे इस कॉलेज के लिए और हमारा सेवकाई का मतलब है क्या नहीं? बहुत से बातें होगा हमारे जीवन में, बहुत से लोग हमारे जीवन का देखकर बोलेगा इस यीशु मसीह का नाम लेकर इन्होंने चले गए, कुछ भी नहीं होगा। And when we have a good friend circle, I believe that sometimes through them also God will speak to us, है क्या नहीं? एक अच्छा दोस्ती लोग हमारा आसपास में है तो उनकी जीवन से जरा उनके मुंह से भी परमेश्वर हमसे बातें करेगा। ये मेरे जीवन में फिर भी अनुभव है। कुछ लोगों को पता है, जब मैंने बाइबल कॉलेज में पढ़कर निकला था, प्रिय जो पास्टर का दोस्त है सिविल सर, वो भी मेरा दोस्त है, हम सब एक ही मन में कॉलेज से निकला, इस सेवकाई से कुछ फायदा नहीं, करना ही नहीं, गया तो क्या मिलेगा? जो लोग सेवकाई के लिए गया, जब मैंने बिहार में था मैंने सुना बहुत लोगों को मारपीट करना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरे परिवार के बारे में सोचा तो हमको खुद का घर भी नहीं है, कुछ तो कमा कर लगभग एक घर लिया, तो वो बड़ा सोच में था। फिर भी परमेश्वर का सोच तो अलग था। मैंने कभी नहीं सोचा केरल में आकर सेवा करना करके, फिर भी परमेश्वर कहाँ भेजा। इसलिए मैं मेरा अनुभव बताता हूँ, इस युद्ध में, इस वारफेयर में मैं और आप निकलना चाहते तो ये परमेश्वर हमको भेजा तो He will send you to a place where you feel that is not comfortable for you.
ऐसा वाला जगह पर परमेश्वर हमको भेजेगा, ये तेरा पसंद में भी नहीं आएगा, तुझको कंफर्ट भी फीलिंग नहीं महसूस होगा। धीरे 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 परमेश्वर एक बात तुझे सिखाएगा, आपको सिखाएगा, यही है तेरा रास्ता, इसको पसंद करना ही। मैं मेरा अनुभव से बता रहा, शायद जो पास्टर के वजह से होगा। हम केरल का लोग कभी भी नहीं सोचते हैं नॉर्थ इंडिया का गांव में जाकर सेवा करना करके, फिर भी जब परमेश्वर का आवाज सुनाई देता है, ना बोला तो फिर आगे क्या होगा, बाइबल बहुत से बातें हमें सिखाया है। एक व्यक्ति था, एक जगह पे जाने के लिए बोला था, दूसरी जगह पे चला गया, क्या हो गया, उनकी वजह से दोस्त लोगों का जीवन में भी दिक्कत आ गया। इसलिए परमेश्वर से डरते हुए, इसलिए पौलुस हमेशा एक बातें बताता है, उनका हर एक अध्याय का पहले वचन में है। मैं बहुत बार ये बातें बताया। इट इज नॉट माई विल दैट आई बिकेम एन अपोस्टल, इट वाज गॉड्स विल। मैं मेरी मर्जी के अनुसार इस प्रेरित नहीं बना दोस्तों, परमेश्वर की मर्जी क्या था। 3 दिन मेरा आंख बंद हुआ था और उनका अनुभव बताया, तो 3 दिन में मुझे बहुत अच्छा से सिखाया। अभी मेरा जीवन एक ही है, मारा तो यीशु के लिए, जिंदा है तो भी हालेलुया। So we have many experiences, and coming back to the red verse, that is Mark chapter 2, वहां आप लोग देख सकता है, उसकी दूसरी वचन पढ़िए। And many were gathered together so that there was no more room, not even at the door। उसका पहली वचन में यीशु मसीह रिटर्न बैक टू कफरनहूम, एक घर पे आया करके लिखा है। किसकी घर है, यीशु मसीह का घर या पतरस का घर, किसका घर है वहां क्लियरली नहीं लिखा, लेकिन एक घर पर यीशु मसीह वापस लौट के आ गया। आकर वचन 2 में क्या लिखा, बहुत से लोग इनका पीछे था। क्यों बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे आ गया? सो वी हैव टू गो एंड स्टडी द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्क चैप्टर 1 and 2। अध्याय 1 का कॉन्टेक्स्ट से लेकर हम देख के आया तो, एक एक वचन को देख के आया तो, यीशु मसीह अध्याय 1 में यीशु मसीह का सेवकाई शुरू हो गया। मरकुस समाचार में यीशु मसीह के जीनियोलॉजी के बारे में नहीं लिखा, वो हमको पता है। Those who already studied New Testament, you know, यीशु मसीह के वंशावली के बारे में मरकुस ने नहीं लिखा। मरकुस ऐसा माना जाता है, ये पतरस ने यीशु मसीह के पीछे घूमता था, पतरस से सुन सुन के मरकुस क्या कर दिया जल्दी से। और मरकुस से सुनने वाले लोगों को यहूदी लोगों का रीति रिवाज भी पता नहीं था। So the audience who were listening to Mark, they were not knowing the Jewish customs also. That was the contact, that was audience. So अध्याय 1 में यीशु मसीह टीचिंग करते हुए देख सकता है, चंगाई देते हुए देख सकता है, और दुरात्मा को निकालते हुए देख सकता है, और यीशु मसीह उनका अधिकार क्या है करके भी प्रदर्शन या सबको दर्शाते हुए भी हम अध्याय 1 में। एट द सेम टाइम कुछ लोगों को इस अधिकार को मानना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि उनकी मर्जी के अनुसार बातें नहीं चल रहा है। वो कौन है? यहूदी लोगों से, और स्क्राइब्स होगा, फैरिसी होगा, ये लोग जो पुराने नियम को पढ़ के बैठा है, वो लोग बोलता है, they will say that अरे this thing should not take place at this time, why this man is doing this thing, who is he actually? So the title, हमारा टाइटल क्या था? ये सारी प्रश्नों के हमारे मन में क्यों? जब हम इस वचन की चिंता करेंगे, पढ़ेंगे, क्या हम फारसी या यहूदी लोगों के समान है या स्क्राइब्स के समान है देखना पड़ेगा खुद को, या हम यीशु मसीह के चेले लोग करके भी देखना पड़ेगा खुद को, या वहां एक पैरालाइज हुए हुए एक व्यक्ति है उनकी समान में या नहीं भी देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला मैं सिर्फ प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्रभु ने वचन मुझे दिया, प्रार्थना किया, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जो वचन और जो चिंता हम कर रहे हैं, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, आप भी पहली बार सुन रहा है, समझ आया? सो मेरे साथ इस गाड़ी पर आगे चलना है, आप भी सोचना है जहां वचन हमको सोचने के लिए जरूरत है। सो मैंने कॉन्टेक्स्ट बता दिया आप लोगों को अध्याय 1 का। अध्याय 2 में आते यीशु मसीह भले बातें किया, भलाई किया, लोगों का चंगाई किया, छुटकारा दिया, उनको मदद किया। इसलिए यीशु मसीह को विरोध करने वाला लोग भी एक ही हो रहा है ना। नॉर्थ इंडिया में जो लोग जाकर सेवा करने के समय, जिसको शिक्षा नहीं है, जिसको खाना नहीं है, उनको मसीह के नाम पर उनको स्कूल में भेजा, उनके बच्चों लोगों को पढ़ाया, थोड़ा आगे बढ़ने के लिए मौका, रास्ता दिखाया, तुरंत लोग आकर हमको क्या करता है? मारता है, बोलता है बंद करके, हम नहीं करेंगे, तुमको नहीं करने। यही समस्या था यीशु मसीह सेवा शुरू करने का समय।
इधर भी। अध्याय 2 में आप लोग देख सकता है यीशु मसीह पापों से लोगों को बचाया, फॉरगिविंग सिन, एंड पापी लोगों के साथ बैठकर खाना खाया। ये भी इन लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि पापी लोग गांव में सबसे तिरस्कार किए हुए लोग हैं, उनके साथ बैठकर ये क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। देन फास्टिंग के बारे में बताया। देन सबत का दिन भी काम किया, सब्त का दिन काम नहीं करना करके पुराना नियम में है, वहां भी यीशु मसीह ने काम कर रहा है। देन हीलिंग, चंगाई भी दे रहा है, कौन सा दिन, सब्त का दिन। ये सब बातें देखते देखते वहां का फारसी लोग, स्क्राइब्स, यहूदी लोगों को बहुत गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि हमारा नियम नहीं चल रहा है। ये जो व्यक्ति आया कौन है हमको पता नहीं, हर बातें नया नया करके जा रहे हैं। और लोग इसके पीछे अभी कहां गए, अध्याय 2 में, अध्याय 2 का पहली वचन में कहां गया, कफरनहूम में एक घर पे आ गया। बहुत अच्छे से अभी अध्याय 1 से लेकर बातों को समझ आया होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम चैप्टर 1 to 2. He was healing, he was forgiving sin, he was showing his authority. Because of his showing his authority and doing new things, many people came in opposition of Jesus. उन लोगों का मन का भी एक ही सोच है, इनको इधर से काम से बंद करवा के। So they had many questions in their mind. अभी हमारा टाइटल का मतलब क्या है समझ आया? साथ ही साथ यीशु मसीह का चेला लोगों का बुलाकर अध्याय 1 का भी, अध्याय 1 में हम देख सकता है यीशु मसीह का चेला लोगों की बात है। और अध्याय 2 में और अध्याय 1 का आधा भाग है, हम काट के देखा तो अध्याय 1 का 16 में यीशु मसीह पहला चेला लोगों को बुलाया। यीशु मसीह चंगाई देते हुए, चमत्कारी बातें करते हुए, सिखाते हुए, कौन भी देख रहा है, who are also watching. Jesus is healing some people, he is teaching, he is doing miracle things, miraculous work, who are also watching. His disciples also. जो मरकुस से रचित सुसमाचार आप लोग पढ़ेगा, यीशु मसीह को ज्यादा से ज्यादा किसको देखा तो भी समझ आया करके पूछा तो दुरात्मा है। दुरात्मा यीशु मसीह को दूर से देखते हुए बोला, ये दाऊद की संतान, मेरा और तेरा बीच में क्या है। यीशु मसीह के चेला लोग भी कभी कभी डाउट में बैठ गए, जैसा हमारा जैसा बड़े बड़े चमत्कारी कामों के देखने के बाद छोटी समस्या आएगा तब क्या हो जाएगा, अरे इस विश्वास में नहीं आना था, बाइबल कॉलेज में ही नहीं आना था, मेरा जिंदगी मैंने बर्बाद कर दिया। यही सोच में था कौन भी, क्योंकि बहुत जगह पर यीशु मसीह के चेला लोग भी डाउट है, ये आंधी तूफान को शांति किया कौन है, और पानी को ऊपर से चल के आया भूत है, कौन सोचा, जो लोग यीशु मसीह के साथ घूमा था। So there was a context. Mark is writing his gospel and saying we have to understand his power in a full manner. Otherwise इस युद्ध भूमि में जाकर कोई फायदा नहीं होगा। यीशु मसीह कौन है, किसकी बुलाहट मैंने मान लिया हूं, किसकी वचन लेकर मैंने जा रहा हूं, ये समझकर निकलना। इसलिए मैंने बोला सेवकाई में गया तो मारपीट का आएगा करके इस वचन में लिख के रखा है। जो लोग हमको मारने के लिए, पीटने के लिए आएगा, they are thinking that they are persecuting us and what we are thinking, एक प्रोफेसी पूरा हो रहा है। एक भविष्यवाणी यीशु मसीह पहले से बोला था, ये होगा। वो लोग मारने से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए यीशु मसीह को मारने के समय रोमी लोगों ने, आर्मी लोगों ने सोचा हम कर रहा है। यीशु मसीह धरती पर आने का उद्देश्य यूहन्ना से सुसमाचार अध्याय 3 का 16 में लिखा है। वो आने का उद्देश्य ही था इस जनता के लिए और उनकी पापों को मिटाने के लिए, खुद बलिदान देने के लिए आया था। He came to sacrifice himself. So those who persecuted him, those who crucified him, they thought it is their will they are doing, but it was God's will. They are just participating in it, we can say. So I'm not going to enter into that. I'm reading verse 3. तीसरा वचन पढ़िए। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए। वो लोग किसको लेके आया, कितना लोग था वो लोग, 4 लोग मिलके एक व्यक्ति जो चल नहीं पाया, जो पैरालाइज था, उनको लेकर किसके पास आया। मतलब ये लोग कहां से भी एक बातें सुना है, यीशु मसीह जो है चंगाई देता है, उसके पास गया तो जीवन, जिंदगी बदल के वापस आ सकता है। ये 4 लोगों को समझ आ गया। ये 4 लोग, मैं सोच रहा था शायद ये पैरालाइज हुआ व्यक्ति का दोस्त लोग होगा,
शायद, क्योंकि वचन में नहीं लिखा दे आर फ्रेंड्स करके। मैं भी और दोस्त लोग होगा, उनका दोस्त में से एक व्यक्ति जो कमजोर है उसको लेकर यीशु मसीह के पास। अगर दोस्त लोग नहीं है करके भी बड़ी बात है। किसी व्यक्ति नीति वचन अध्याय 3 का 27 में क्या पढ़ा सुबह हमने, किसी का जीवन में भलाई की बातें रुक गए तो हम उसको क्या करना पड़ेगा, भलाई के बातों के जीवन में पहुंचाने का काम किसका है, मेरा है और आपका भी है, वही हमारा सेवकाई। So they understood that if we go and visit or if we go to Jesus, my friend or this fellow will get healed. So ये जो पैरालाइज हुआ व्यक्ति को लेकर वो लोग यीशु मसीह कफरनहूम में जो घर पे था, अभी दिक्कत क्या हो गया, बहुत बड़ा भीड़ है, यीशु मसीह से अपॉइंटमेंट मिलना और यीशु मसीह से मिलना भी मुश्किल हो गया। दोस्त लोग और कुछ नहीं सोचा, मैंने एक निर्णय लिया हूं, मैं लोगों को बचाने के लिए सेवकाई या यीशु मसीह का विश्वास कर निकला हूं। I accepted Lord's call and I am here to save people, whatever the problems that may come in front of me. I will not take that fellow and go back and I will not step back. What they did, next वचन, 14 वचन। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे क्या कर दिया, they removed the roof and they खोल दिया। अभी हम इधर मैं प्रचार कर रहा हूँ, इधर ऊपर से किसी ने खोल कर नीचे आया तो पूरा प्रचार हो जाएगा, डिस्टरबेंस हो जाएगा, है या नहीं। यीशु मसीह बहुत अच्छा से टीचिंग कर रहा है वहाँ, इसलिए मैंने बोलता हूँ कोई कभी प्रचार का बीच में सुसु करने के लिए भी नहीं जाना, डिस्टरबेंस हो जाएगा। सो यीशु मसीह वहाँ प्रचार कर रहा है, he was teaching and preaching and some people, 4 people came with their friend, they want to fulfill the need and purpose they came here for. So उन लोगों को वो व्यक्ति को देख के आने का उद्देश्य कुछ भी करके पूरा, अभी भीड़ बहुत बड़ा है, इंतजार करके वेट करने का भी, क्योंकि उतना जरूरत है इस व्यक्ति के जीवन में चंगाई। क्या कर दिया, तुरंत छत का ऊपर चले गया। यहूदी लोगों का घर का बारे में आप पढ़ के देखा तो ये मिट्टी से लकड़ी से बनाते थे, ऊपर छत बना कर रखता है, उसको तोड़ना मुश्किल तो है उस समय, आज हमारा हाथों में बहुत वेपन सब कुछ आ गया, फिर भी बोला क्या कर दिया, उसको तोड़कर इनको नीचे, आगे वचन पढ़िए 5 वचन। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे उनका और उन लोगों का, या उन लोगों का हो गया 5 वचन। And when Jesus saw their faith, his faith करके नहीं लिखा, their faith मतलब ये 4 दोस्त लोग, उनका दोस्त को लेके आया, ये 4 दोस्त लोगों का विश्वास कौन देखा, यीशु मसीह देखा। देख के क्या किया, he said to the paralytic, 4 लोगों का विश्वास को देखकर ये पैरालाइज वो व्यक्ति का क्या बोला वचन पढ़िए, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, हे पुत्र तेरा पाप क्षमा। अब पैरालाइज वाला व्यक्ति सोचा होगा, अरे मैं घर पे लेटा था, मुझे लेके आकर यू गाइस ब्रॉट मी इनटू द कॉन्ग्रीगेशन एंड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन दिस मैन इज सेइंग, और ही व्हाट जीसस सेड, पाप से क्षमा। फिर भी आने का दूसरा भी उद्देश्य था, वो दोस्त लोग लेके आया, इनकी जीवन में चंगाई होना है, ये कल से लेकर चला। तो यीशु मसीह और एक बातों को देखा, यीशु मसीह आने का मतलब यीशु मसीह वहां पूरा करते हुए हमको दूसरी बातें और उनको दूसरी बातें बताई। यीशु मसीह आने का पहला उद्देश्य क्या है, हमको पापों से बचाने के लिए। इसलिए यीशु मसीह पापी लोगों के साथ जाकर बैठकर खाना भी, अगर हम पापी लोगों को और इस दुनिया पर और गांव लोगों के बीच में जाकर नहीं बैठा तो उनको बचाना होगा, इसलिए यीशु मसीह खुद करके दिखाया। So these things are irritating many people, those who are living at that context of that society. और समूह में जीने वाले लोगों को यही बातें गुस्सा करवाया, अरे हम ही बैठने के लिए छोटा जाति नीचे जाति कर हम घूमता है, केरल का या साउथ इंडिया का या बड़ा बड़ा मसीह लोग, हमारा गांव का ही बड़ा जाति का लोग आकर किसके साथ बैठकर आराधना कर रहा है। सर कॉन्टेक्स्ट ऑलमोस्ट सेम है, उस समय भी अभी भी। आगे वचन पढ़िए, यीशु मसीह ने वो व्यक्ति को क्या बोला, तेरे पापों से हे पुत्र तेरे पाप क्षमा। वो व्यक्ति की जगह पर हम हैं तो हम क्या सोचते थे, ये सुनने के लिए थोड़ी आया मैंने।
चलने के लिए तो आया था, उनको चलना था थोड़ा इधर उधर। और दोस्त लोग सोचा होगा अरे भाई मैंने इन लोगों को पूरा छत को तोड़कर अंदर रखा, ये इधर से चल के जाएगा करके सोच में, बिकॉज वी वांट हिम टू गेट हील्ड, दैट्स व्हाई इवन ब्रेकिंग द वॉल, इवन ब्रेकिंग द टेरेस, वी पुट हिम डाउन एंड व्हाट जीसस सेड, पापों से क्षमा हो गया, खत्म। वहां खत्म नहीं हुआ। पहली जो उद्देश्य यीशु मसीह सेवकाई का करने का था वो बातें कर लिया। वहां भी स्क्राइब और फरीसी लोग वहां था, उन लोगों में क्या आया, हम तो पुराना नियम को तो मानता है, हमारे नियम के जो अनुसार क्षमा देने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, बलि चढ़ाना पड़ेगा, पुरोहित का जरूरत है, वो बलि चढ़ाने के बाद पापों की क्षमा, यही सोच से इन लोगों, इसलिए इन लोगों का सोच आ रहा है ये कौन है, सीधा सीधा बोल दिया ये तो सिर्फ परमेश्वर से ही हो सकता है। वहां वो लोग सवाल भी पूछा, आगे वचन पढ़िए, फिर यीशु मसीह ने क्या बोला, तब कई शास्त्रियों से जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, अपने अपने मन में लोग विचार किया, they started to think in their hearts only, but they were not knowing that these things are already known to Jesus। यीशु, वो लोग अपना अपना हृदय में चुप चुप के रहस्य में चिंता किया थे बात है, ये सब बातें यीशु मसीह को वहां, यीशु मसीह को भी पता चला, इसलिए यीशु मसीह ने आगे क्या पूछा, यह मनुष्य क्यों ऐसा करता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। इसलिए मैंने बोला ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को समझ नहीं आया इधर प्रचार कौन कर रहा है, कौन हमको हमारा सामने खड़ा है, इसको समझ नहीं आया। पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को समझ नहीं आया, इसलिए वो लोग क्या बोल रहे, देखो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, ही इज ब्लास्फेमिंग गॉड, ये तो बहुत बड़ा पाप है। अगर उन यहूदी लोगों के नियम के अनुसार किसी ने परमेश्वर का निंदन किया तो क्या करते हैं, स्टीफनोस का क्या हो गया, नेक्स्ट प्रोसेस पत्थर उठाना है, मारना ही है, मतलब हमारी परमेश्वर ही कर सकता है करके वो लोग सोचा, वही परमेश्वर देहधारी होकर उनके सामने आकर खड़ा हुआ करके समझ नहीं आ रहा है। आगे वचन, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों। So we reach to the title of our meditation, तो अपना अपना हृदय में इस चिंता और इस सवाल को लेकर क्यों इधर खड़ा है। यीशु मसीह ने उन लोगों से पूछा, उन लोगों का तरफ से एक बार सोच के देखो, अरे ये तो मेरे मन का अंदर सोचा था, I was thinking all these questions and I was having all these questions in my mind, in my heart, how this fellow is questioning me the same thing। ये जो व्यक्ति हमारा सवाल को हमने दोस्त को भी नहीं बताया, ये हमसे पूछा, ये सवाल लेकर क्यों इधर खड़ा है। आगे वचन, सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपने खाट उठाकर चल फिर। यीशु मसीह दो सवाल उन लोगों से पूछा, क्षमा के बारे में बोलूं या चंगाई के बारे में बोलूं। आजकल प्रचारक या प्रचार के बारे में सुन के देखा तो ज्यादा कौन सी चीजों के बारे में होता है, चंगाई भविष्यवाणी यही होता है। यीशु मसीह ने उनका सेवकाई मिशन स्ट्रेटजी में Jesus Christ have shown a best example. We have to share the good news to the poor first, those who are in need, then मतलब आत्मरक्षा या उद्धार सबसे मुख्य है, उसके बाद तेरा शरीर पर तेरा शरीर की चंगाई की बात है। इसलिए विजय भाई ने बहुत अच्छा से, जो पास्टर ने बहुत अच्छा से बताया, हम मासिक बना करके मैं पूरा 1000 साल तक जीऊंगा करके कहाँ पे भी नहीं लिखा। सच बताया तो सुसमाचार में लिखा है, मसीह बनने का कारण जल्दी मारपीट कर यीशु मसीह के चेला लोगों का कहानी वही सिखाता है। हाउ मेनी ऑफ यू डिसाइडेड टू बिकम डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, पता नहीं भारत का कौन सी कोने पे कौन कब मर जाएगा, बट लेकिन ये होगा कर मेरा पवित्र वचन, परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे पहले से लेकर बोल दिया। फिर भी मैं और आप या यीशु मसीह इस धरती पर आने का, सेवकाई करने का पहला उद्देश्य था उद्धार लोगों का हृदय पर पहुंचाना। दूसरी बात यीशु मसीह ने वो व्यक्ति से बोला, उठो और ये दूसरी बात है बोला,
समझ आया? यही जो बातें हम देखकर यूहन्ना से सुसमाचार अध्याय 5 में जाकर देखा तो 38 साल से लेकर वहां एक व्यक्ति बीमार पड़ा था। यीशु मसीह उनको पहले चंगाई का बातें बोला, दूसरी बार जब उनको मिला तब बोला अभी पाप मत करो, अभी पाप किया तो पुराना जिंदगी से बुरा जीवन। So whatever and whenever we are going to preach or wherever we are going and sharing the word of God, it should be compulsory। दो बातें जरूर होना है। You should preach the message of salvation, then only it comes to healing or other things। Or whenever you preach or whenever you teach, you should take the words and you should teach the words according to the original context and meaning। So यीशु मसीह ये सब बातें करते करते वहां का लोगों को बहुत गुस्सा हो गया, इसलिए 3 से लेकर पढ़ के दिखना। 3 का 6 में पढ़ के देखा तो फारसी से लोग जाकर एक हेरोदी लोगों के लिए काउंसिल बनाया, हम इसको क्या करना पड़ेगा, अभी मार डालना ही पड़ेगा। अध्याय 3 का 6 में लिखा है। वी आर नॉट गोइंग टू एंटर इनटू दैट, बट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दिस क्वेश्चन ऑन द टाइटल एंड दोस 4 फ्रेंड्स अगेन। ये 4 दोस्त लोग या ये 4 लोगों को एक नया व्यक्ति उस दिन देखा तो भी they understood that if we take him to into the presence of Jesus, his life will be changed। ये 4 लोगों को बहुत अच्छा से समझ आ गया, अगर वो 4 लोगों से इसका दोस्त होगा शायद न कि एक नया व्यक्ति होगा। लेकिन दोनों तरफ से देखा तो भी they aim that by meeting Jesus, और ये जो व्यक्ति को लेकर यीशु मसीह से मुलाकात करवाने से इनका जीवन बदल सकता है। इसलिए यीशु मसीह इन लोगों ने ऊपर प्रचार का डिस्टर्ब किया भी होगा, फिर भी छत को तोड़कर अंदर इसको रखने का समय यीशु मसीह उनको देखकर क्या बोला? वचन पढ़िए, 4था वचन, वर्स 4। परंतु जब बस भाई, यीशु ने उनका विश्वास देखकर, यीशु ने किसका विश्वास देखा? प्रचार में डिस्टर्ब हुआ होगा, टीचिंग में डिस्टर्ब हुआ होगा, फिर भी यीशु मसीह ने वहां क्या देखा? विश्वास को देखकर उन लोगों से क्या बोला? तेरा दोस्त का काम अभी मेरा ही है। यीशु मसीह ने जब यूहन्ना से सुसमाचार का बारे में सारांश शुरू में बताया तो हमको फ्रेंड्स करके बुलाया, दोस्तों करके मुझको और आपको बुलाकर बोला इस दोस्त से प्यार करने के लिए सिर्फ नहीं है सेवकाई, शत्रु से भी प्यार करना है। हालेलुया। इधर तक हमने जो छोटी बातों में चिंता किया सबको समझ आ गया। The first thing I said, there are many people who thought ये जो बंदा है, ये जो पैरालाइज फेलो है, इसको कुछ नहीं होगा करके सोचकर उनको देखकर जाने वाला बहुत लोग था उनके जीवन में पहले। लेकिन ये 4 लोग इनका जीवन में आया। ये जो व्यक्ति पहली बार 4 लोगों को मिला भी होगा, जिंदगी क्या हो गया? So are we living such a life in this Christian life? लोग मुझसे और आपसे मिला तो उनके जीवन में बदलावट आ रहे हैं नहीं आ रहे, पहले हम सोचने का एक क्वेश्चन मार्क है। टाइटल क्या था? Why do you question these things in Why do you question these things in your heart? So even after believing in Jesus, we have many questions। क्या ये मुझसे होगा? क्या मैं लेके गया तो हो जाएगा? अगर ये 4 लोग भी ऐसा सोचा तो 4 लोग भी इंसान तो है, और वो सोचा होगा पहले हम तो लेकर आए, इसको लेकर बहुत भारी वाला आदमी है, चल नहीं पाता है, हम 4 लोग मिलके लेके आया, अभी अंदर घुसकर दिखाना भी मुश्किल है। So they took an extraordinary work decision। हम एक उद्देश्य में इधर आया है, मैं वो उद्देश्य को पूरा करके इधर से जाऊंगा। I came here with a purpose। So whatever the thing that is going to happen in our life, we are going to fulfill the purpose, fulfill the need, and we will go back। अगर मैं इधर से चले गया तो, अगर हम इधर से चले कफरनहूम के घर से वापस चले गया तो जो व्यक्ति को, जो दोस्त को मैंने उठा के लेके आया, वो मेरे साथ चल के आएगा। वही सोचा होगा ना लोग भी। उसके नीचे वचन पढ़िए, 9वीं वचन, 10वीं वचन। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर
पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। और उसने उन लकवे के रोगी से कहा, पढ़िए क्या कहा? मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। अभी अध्याय 2 का 5 से लेकर पढ़ के देखा तो we can see the faith in action। ये लोग एक विश्वास में लेके आया और विश्वास एक काम में बदल गया। यीशु मसीह उनका पाप से क्षमा दिया। अभी 9-10 वचन में पढ़ा है, क्या लेकर चले जाना? And when we study the gospel according to Mark, he uses one word more than 40 times. What is that word? Immediately। वहां 10वें वचन में लिखा है, 12वें वचन में लिखा है immediately, तुरंत। पढ़िए 12वें वचन। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके ये तुरंत करके शब्द मार्कुस से सुसमाचार में बहुत जगह पे आपको दिखाई देता है, तुरंत तुरंत तुरंत। मुझको ऐसा लगा था एकदम, मैंने इसके बारे में पढ़ रहा था, पत्रोस ऐसा वाला एक व्यक्ति था। पत्रोस से सुनकर मार्कुस ये लिखा, यूहन्ना मार्कुस ने लिखा, पत्रोस ऐसा वाला व्यक्ति था, यीशु मसीह पानी पे आया, तुरंत मुझको भी जाना है, तुरंत डर भी आ जाता है। पत्रोस का एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा तो ऐसे व्यक्ति था, तुरंत तुरंत सब करना है, तुरंत। फिर भी एक दिन यीशु मसीह ने उनको बोला था, तो मुझे इनका तुरंत क्या बोला, अगर मैं मर गया तो भी मारने की जरूरत था। थोड़ा ठंड का समय में जाकर यीशु मसीह को सता रहा था, वहां जाकर खड़ा हुआ एक लड़की ने आकर पूछा, तू भी नहीं? कौन आकर पूछा? पूरा वचन तो नहीं पढ़ा रहा क्योंकि टाइम कम है। एक लड़की ने आकर उनसे पूछा तो क्या बोला, मैं इसको जानता भी नहीं। तुरंत उत्तर भी मिल गया, मतलब ये तुरंत इमीडिएटली वो व्यक्ति ने क्या कर दिया, he picked up his bed and went out before them all। ये 4 लोग इनको लेके आया, उनके आगे कौन चला? ऐसे लिखे ना, पढ़िए 12वें वचन। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। सबके सामने से निकलकर, and there again a question in those who are seated over there। वहां जो लोग इकट्ठा है, उन लोगों के मन के अंदर फिर भी सवाल है, we never saw anything like this। क्या बोला वो लोग? कभी भी ऐसा वाला चीजें हमने नहीं। पूरा क्वेश्चन से ही ये पूरा अध्याय का पहला 12 वचन। फारसी लोगों को डाउट है, ये कौन है, ये सब कुछ कर रहा है। अभी चेला लोगों, वहां प्रचार सुनने वाले लोगों को डाउट है, ये कैसे हो गया, ये हम पहली बार तो देखा। इसलिए मैंने बोला यीशु मसीह आने का उद्देश्य को पूरा करते हुए हमको और आने वाला दिनों में सेवा करने के लिए उनके चेला लोगों के एक अच्छा उदाहरण रखे जा रहा था। He kept an example in front of all his disciples in coming days how we should go and do the ministry। After that यीशु मसीह का जो कहानी पढ़ के देखा तो हमको सेवकाई में जाना मुश्किल होगा, क्योंकि अध्याय 3 का 6 से लेकर क्या है, उनको मारने के लिए लोग योजना। Coming back to the Psalm number 3 verse 2, लोग हमारे बारे में सोच कर क्या क्या बोलता है, इनको कुछ है। यीशु मसीह हमारा विश्वास को देकर क्या बोला, अरे तुझसे होगा। वही बोला ना 4 लोगों से, तेरा विश्वास की वजह से ये हो गया, हमारा विश्वास की वजह से हमारे जीवन में आशीर्वाद। इफ यू डोंट हैव विश्वास और इफ यू डोंट हैव दैट फेथ, डेयर नहीं तो युद्ध में जाना मुश्किल है। इसलिए मैंने पुराने नियम से बहुत से दाऊद की कहानी लेके आया, क्योंकि वो भजन संगीता दाऊद ने लिखा था। दाऊद को इतना बड़ा पोजीशन में बिठाने से पहले सब मतलब हरियाली जगह पर लेके नहीं दिया परमेश्वर ने। हरियाली करके इसलिए बोला पूरा ब्लेसिंग, ये लो, कार लो, ये लो, सिंहासन लो, महल लो, बैठो, नहीं बोला। राजा बनने के लिए तो बुलाहट है, किसको गिरा के जाना। वहां मेरा और आपका बुलाहट हम कितना गहराई से समझ लिया, किसकी आवाज सुन के मैंने निकला, हमको समझ आया या नहीं आएगा, आया करके लोगों को। अभी ये 4 लोगों का जिंदगी और वो चंगाई मिले हुए व्यक्ति की जिंदगी देखकर लोग क्या सोचा, क्या सोचा, आया था कैसे, किसी ने उठा के लेके आया था, गया था कैसे। अगर चाहिए तो 2 लोग उठा के लेके आने का उतना खुशी से वापस लेके गया, खुद का सामान सब उठाकर खुद। कमिंग बैक टू गैलेशियंस चैप्टर 6, वहां लिखा है अध्याय 6 का 5 पढ़िए। हमको इस सेवकाई में मदद करने के लिए बहुत से लोग होगा,
लेकिन निकलने का समय एक बात है पक्का करना, निकलना, यू हैव टू बियर योर ओन लोड। पढ़िए गलातियों के पत्री अध्याय 6 का 5। ये पढ़ते हुए मैंने कंक्लूजन बताना चाहता हूं। गलातियों के पत्री गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 5। For each will have to bear his own load. वंस अगेन हिंदी। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। कभी आर्मी लोगों के बारे में सोचा, इधर बैठने वाला आर्मी बॉयज करके मैंने किसी कुछ लोगों का बायो देखा था। आर्मी बॉयज, किसका आर्मी है पता नहीं, आप लोग का था शायद। सो दैट इज अ ट्रेंड वी हैव, आर्मी बॉयज। आर्मी बनने के लिए गया था, सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए यीशु मसीह के आर्मी बनने के लिए शायद इधर आया। सो when we think about सैनिक, आर्मी लोगों के जीवन के बारे में सोचना, उनको मदद करने के लिए सरकार है, साथीदार है, सब लोग है, लेकिन युद्ध में जाने के समय उनका पीछे एक बड़ा बोझ वाला बैग होगा, वो बंदूक होगा, वो कूद लेंगे। अध्याय 6 का 2 पढ़ के देखिए, परमेश्वर ने एक बात बोला, एक दूसरों का बोझ उठाने के लिए तैयार भी हो जाना। 5 में आते आते पौलुस ने बोला, ये है वो परमेश्वर देगा, लेकिन इस बुलाहट को मानकर जो चीज, जो बातें आज हम पहले प्रचार से सुना, क्या क्या है, वो तलवार को, वो हमारा वेपन को हम लेकर तैयार होकर युद्ध में। सोचो, रमेश प्रकाश वो दोनों बहुत अच्छा कट्टर दोस्त है, शायद बेस्ट फ्रेंड्स है बचपन से लेकर। ये और वो आर्मी बन गया, युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है। रमेश ने प्रकाश से बोला, हम जाएंगे, मेरा तलवार भी तू लेके आ। शत्रु आगे आ गया, कितना भी बड़ा दोस्त होगा, क्या करेगा? वो भाग जाएगा, नहीं तो वो खुद का जीवन बचाएगा। So those who are in the mission field, same. You have to bear your own load. और लोड करके जिस शब्द का ग्रीक शब्द देकर देखा तो वहां लिखा है एक आर्मी कैसा उसका बंदूक और खाने पीने का बैग लेकर चलता है, वैसे ही परमेश्वर का लोग उनका जीवन में वो बंदूक को, वो वेपन को, वो जो वचन को लेकर नहीं घूमा। तो कुछ चीजें हमारे जीवन में सामना करना पड़ता है, तब दोस्त नहीं होगा। यू विल नॉट गेट असिस्टेंस ऑफ योर पास्टर, योर फ्रेंड और योर फादर एंड मदर। ओनली दिस वचन कैन हेल्प यू। मेरा पापा बताते थे, इस वचन तेरा हृदय पे नहीं है तो दुनिया का सारा चीजें तेरा हृदय पे होगा। दुनिया का चीज ऐसा है, हमारा इधर एक छोटी लड़का लोग रहता है चिल्ड्रंस होम में, इधर से भागकर जाने के लिए बहुत सामर्थ्यशाली है, पावरफुल है। थोड़ी समय के बाद इसको इधर से भागने के लिए जो सामर्थ्य होता है ना, वो कम हो जाता है। मैं उनको एक बार बताया, तुझको इधर से लेके जाने के लिए शैतान बहुत मदद करता है। वो बीच में लेके जाकर छोड़कर बोलेगा, अभी मैं दूसरों को पकड़ने के लिए जा रहा है, इसलिए इससे अच्छा है हमेशा बने रहूंगा करके बोलने वाला यीशु मसीह की बात मानकर इधर ही रुकना। शैतान ने कहां पर भी ऐसा नहीं बोला, मैं हमेशा तेरा साथ आऊंगा करके। आएगा, जब तक रास्ता बदलकर तेरा डिसीजन होगा तब तक वो आपके साथ होगा, उसके बाद क्योंकि वचन में लिखा है वो भटकते हुए घूमने वाला आदमी है, उसको एक पोजीशन नहीं होगा। सो those who are planning to, or those who are accepting, or those who accepted the ministry or the call for ministry, पौलुस ने क्या बताया और यीशु मसीह भी क्या बताया? अपने बोझ को उठाकर चलना। समझ आया नहीं आया? So from today's meditation, I just want to summarize by bringing all the points. Psalms number 3 verse 2 says that there are many people who thinks about my life, कुछ भला बातें नहीं होगा, इसको उद्धार नहीं मिलेगा, कोई जिंदगी अच्छा से नहीं होगा करके सोचने के लिए भी बहुत लोग है। भजन संगीता का अंतिम वचन में क्या लिखा? अगर उद्धार हुआ तो ये मेरा परमेश्वर यहोवा से ही होगा, ये मेरा विश्वास है। If I step out in this mission field, in this warfare, I am sure that the one who called me, he will sustain me, he will fulfill all my needs according to the context and the purpose. समझ आया? God never said that he will fulfill your wants. आपका क्या उसका क्या बोलता है? आप जिस बातों पर पसंद करता है वो सब दूंगा करके परमेश्वर ने कहां पे भी नहीं बोला।
मैं और आप इस सेवकाई को मानते हुए जैसा निकलता है, वो मिशन को, वो इधर दैट मिशन शुड गो फॉरवर्ड। सो वो मिशन को पूरा करने के लिए क्या क्या जरूरत है वही पूछना, वही मिलेगा भी। समझ आया होगा? As you and I enter into this mission field, you and I should ask the needs that will benefit for our mission journey. Other than that, what all the things you will ask, it will not come to your hand. वहां निराश होकर मैंने विश्वास के साथ निकला था, कार के लिए पूछा था नहीं मिला, या पैसा के लिए पूछा था नहीं मिला, अभी शादी होने करके सोचा था अभी नहीं हो पाया। जीजो भाई का शादी जल्दी से हो गया था, बगल कॉलेज में पढ़ने के समय हुआ था शायद 1 महीने के बाद। इनकी कहानी सिबिन सर ने बहुत बार मुझे बताया है, शायद मैंने सुना भी हूँ। सिबिन सर का दोस्त है, सो शाम को जानते हैं ना, अभी अमेरिका में वो इधर ही पढ़ा था। शाम जो अभी अमेरिका में है, वो उसका बचपन का समय में इधर इस 12 भवन में पढ़ के गया था। दैट टाइम इधर एक शाम करके एक सिबिन सर का और जीजू सर का एक दोस्त है, बगल कॉलेज में पढ़ने का समय, शायद इंग्लिश में बात बोलना उसका नहीं आते थे, इंग्लिश का एक बात बोलना नहीं आते थे। अभी अमेरिका में एक पास्टर है, वो उनका एक कहानी है। When he was here in this बालाभवन चिल्ड्रंस होम, एक दिन एक पास्टर ने कर बोला, बच्चे लोगों आपको क्या क्या बनना है हाथ उठाना। ये बंदा हाथ उठाकर बोला मुझे पादरी बनना है। अभी वो पादरी है, अमेरिका में पादरी है। So if we have a decision that will benefit the mission work of God, for sure God will fulfill that. समझ आया होगा? अदर देन दैट, शायद आर्मी बनने के लिए गया, कुछ कमी हुआ इसलिए वहां से वो लोग क्या कर दिया। ज्यादातर बाइबल कॉलेज में ही होता है, बाकी सब जगह पर हार मानकर लास्ट ऑप्शन होगा बाइबल कॉलेज। वहां पता चलेगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं हार के आया करके, ज्यादातर ही होगा। वो हार हमको मिला भलाई के लिए हो गया, इसलिए मैं और आप इस मसीह को गहराई से जान नहीं पाया। That failures, those failures that happen in my life and your life, led you to know. इसलिए पतरस के जीवन में देखना, मछली नहीं मिला, इसलिए यीशु मसीह आकर बोलने के बाद मछली मिला, तब पता चला मैं किसकी बात मानकर आगे काम करना है। समझ आया? हम बहुत चीजें, मैं भी इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ, कंप्यूटर साइंस पढ़ा हूँ, सब पढ़कर बहुत मैंने भी किया था, कहाँ पे भी 3 महीने से ज्यादा नहीं रुक पाया। ये अब इधर आकर 3 साल हो गया। इसलिए मुझको एक बात है बहुत अच्छे से समझ आया, मेरी मर्जी के अनुसार मैंने फोन मांगो, लैपटॉप मांगो, कार मांगो, गाड़ी मांगो, कुछ भी मांगो, मुझे नहीं मिलने वाला है। इस सेवकाई के लिए कुछ भी मांगो, सब कुछ सही समय पर जरूर मिलेगा। ये मेरा 3 साल का अनुभव से बता रहा हूँ। शायद those who are in mission field in Bihar also, they are also having the same thing. मारपीट काया तो है, फिर भी दिल का अंदर कुछ तो है। क्योंकि मैं इस युद्ध में निकला हूं, किसने मुझे बुलाया, किसकी आयुध लेकर, किसकी वेपन्स लेकर मैंने निकला, मुझको बहुत अच्छा से। इसलिए लोग कुछ भी बोलने दो, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको इस बुलाकर का मतलब ही समझ नहीं आया होगा, इस सेवकाई क्या है समझ नहीं आया। इसलिए whatever people will say, I will not listen. I have to take a decision that I will serve the Lord with all my heart and mind. And whatever comes in front of me, मैं भी मेरा पढ़ाई का शिक्षा लेने का समय, ट्रेनिंग का समय, मैंने परीक्षा में फेल भी हो जाऊंगा, फिर भी मैं क्या करूंगा फिर। So that should be our decision. And coming back to the 4 friends, उनका विश्वास की समान मेरा और आपके जीवन में विश्वास है, तो मेरे जैसा आपके जैसा लोगों को एक नया जीवन देने के लिए वो यीशु मसीह को मिलाने का समय तक ही हमारा काम है, बाकी कौन करेगा। When you get chances and opportunities to do good things, वो भी लिखा है गलातियों के पत्र अध्याय 6 का 10 में, जब अच्छा काम करने के लिए मौका अभी है, अभी आलसी होकर बैठा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? पढ़िए अध्याय 6 का 9 और 10। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम आजकल बुरा काम करने के लिए बहुत साहसी लोग थे, बहुत साहस तो करता है, भला काम करने के लिए अगर हुआ तो हुआ करके। और
एक वचन है ना, जैसा धरती पर बांधा जाएगा स्वर्ग में भी हम एक अच्छा दोस्ती बन के जी रहा है। मैंने और कॉन्टेक्स्ट से मैंने एक बात बताना चाहता हूँ, मैं और आप एक व्यक्ति से सुसमाचार से एक रिश्ता बांधा तो वो कहाँ भी बांधा जाएगा। अगर वो सुसमाचार से उनके जीवन से कुछ बातें निकाल दिया तो कहाँ भी निकल जाएगा। स्वर्ग राज्य से भी वो काम वो करने के लिए धीरज तो होना है, साहसी बनना है। यही मेरा युद्ध है, मैं लड़ूंगा, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है करके विश्वास के साथ नहीं निकला तो ट्रेनिंग के लिए बड़ा बड़ा गवाही लेकर आया होगा, थोड़ी दिन का अंदर इस बलून का अंदर से हवा निकल जाएगा वापस। मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ, मैं बाइबल कॉलेज में 5 साल पढ़ा, हर एक साल में बाइबल कॉलेज से पूरा पैक करके घर पे आते थे क्योंकि पसंद नहीं था। लेकिन परमेश्वर हमको एक बार पकड़ लिया तो उनकी हाथों में गिरने से अच्छा है उनकी बातों मानकर जीना। मैंने गिरा इसलिए बोल रहा हूँ, वो दर्द बहुत बड़ा दर्द था। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ आज के इस चिंता करने के लिए और इस वचन से सिखाने के लिए और सीखने के लिए प्रभु ने मुझे भी एक अच्छा मौका दिया। मैंने उम्मीद करता हूँ इस वचन बहुत अच्छा से आपके हृदय पे होगा। Whatever happens, maybe your teacher will can't help you, maybe your friend can help you, your father and mother can't help you, your pastor can't help you. There is only one person. If you have that faith, he will help you. But make sure his words are in your heart and that faith life you should continue to lead in your life. Then only things are possible in front of you. वो विश्वास का जीवन आगे अच्छा से चलाया तो ही ये सब कुछ शादी होगा। समझ आया? There is no problem if you have a bad history. You are here to make a good history in the Lord. So make sure सबकी सामने और सारे लोगों के सामने मैं एक अच्छा दास के रूप में जिंदगी बिताना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे यीशु मसीह मुझको देखकर बोलना है, ये मेरा प्रिय पुत्र, इस पर मैं प्रसन्न हुआ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी चिंता आप लोगों को समझ आएगा। सो टाइटल क्या था? अभी भी ये कौन है, मैंने कौन सा बुलाहट पकड़ के आया, मैं क्यों मेरा पादरी का बात पकड़ कर इधर तक आगे करके सवाल है। तो इस टाइटल क्या था हमारा? Why do you have all these things in your? खुद से सवाल पूछना, why am I having all these questions in my heart when I have a God who can help me according to my needs, when I have a powerful God who always guides me. Why should I keep all these doubts in my life? मैं गिरूं या ये कौन है, ये किसकी आवाज है करके क्यों सवाल मेरे और आपके हृदय में आना है। So I am sure the title also matching to the discussion or the meditation which we have. So कुछ doubt है तो if you have any सवाल or any questions, remove that questions, fill that place with the word of God. If you have faith and if you can become their friend like 4 of them, you can change your friend's life and many people's life through your small life that you live on this earth. समझ आया होगा? आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के समय शंभू आगे आकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कर आशीर्वाद के साथ हमें भेजना।